Welcome to Start Class 7 Geography Chapter number 3. Dear student, this is part 2 of the chapter. So our heading is Major Landform. The landscape is being continuously on away by two processes. Means on the landscapes are continuously being changed from one form to another. So this changing is due to two processes. First was the internal process, that was over in the first video, and this is external process. External processes are again of two kinds. So these external two processes are, number one is weathering, second is erosion. First is weathering, second is erosion. And what is weathering? Weathering is the breaking up of rocks. Breaking up of rock is called weathering. It took longer time, many years, you can say more than 1,000 years even. And erosion is the wearing away of the landscape, land part by different agent. And what is erosion? Carrying away, wearing away, damaging of the land part by the wind, water, etc. So this is called erosion. Suppose you keep some soil here and put water from upside on that soil. So what will be there? The soil will flow here and there. So this is called erosion. Eroded material carried away are transported by water and wind. So what are two sources of the erosion? Obviously they are water and wind. And from one place this material erode and deposited to other place. This process of erosion and deposition create different landform on the earth. Suppose at one place there is this much high soils. So when continuously water will be there, rain will be there. So soil of this area will flow here and there, and it will deposit to any other place. So that area will get more soil, and the place where you kept some soil, that will be empty or it will be decreased. Next heading is work of river. Work of river. The running water in the river erode the landscape. When the water is running in the river, so it cut the land part inside of the earth. When the river tumble at a steep angle, and when the river and when the water fell down over very hard rocks or steep valley, so it is called waterfall. When the river water fell down from the height, it is called waterfall. And now next is meander. What is meander? As the river enter the plain, it twists and turn. When the river enter into the plain, it twists, means it turn in this way. Suppose this is the river, so it is flowing in this way. Sometime river flow directly in a straight way like this, and sometime it flow in this way. So like this diagram is given. So this turn, the turn of the river, you can see here the turn of the river, this is called meander. The turn of the river is called meander. And this meander, when the word, this is called meander. And after that, Oxbow Lake. What is Oxbow Lake? You will see. Then when continuously water flow into the river, and the place where there is curve, where there is turn, so sometime the river change its way. Sometime the river change its way. कभी कभी जो पानी होता है वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, और ये जो टर्न है ऐसे ही टर्न वहीं पे छूट जाता है, और ये नदी सीधे बहने लगती है, और ये टर्न यहीं से छूट जाता है, और नदी ये सीधे जाने लगी है. तो ये जो टर्न छूट गया, यहाँ पे थोड़ा पानी रह जाएगा. हम इसे क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक. जैसे यहाँ पे ये जो नदी थी पहले ऐसे बह रही थी, तो रास्ता इधर चेंज कर लिया नदी ने, तो ये पोर्शन रह गया पानी का, ये कट गया है कहाँ से? रिवर से, और यहाँ पे अभी भी पानी स्टोर है. तो इसके क्या कहते हैं हम? ऑक्सबो लेक्स कहते हैं. इट इज कॉल्ड
oxbow lakes. Now next is, as it flood, it deposit layer. At the time the river overflow its bank, this lead to the flooding. When there is much rain, so what happen? The river, there will be flood in the river, and the water will go out of the river bank. जितनी दूर तक नदी थी, पानी उससे ज्यादा दूर तक चला जाएगा और उसके नेबरिंग एरिया में पानी बहना शुरू हो जाएगा. एज इट फ्लड इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ द फाइन सॉइल. तो जब फ्लड आता है तो अपने साथ डिपॉजिट करता है फाइन सॉइल के लेयर्स को. जहां से पानी बह के आया होगा वहां के ऊपरी हिस्से के जो अच्छा पार्ट होगा, अच्छी टाइप की सॉइल होगी, वो उसको वहां से बाहर ले जाता है. सो दिस मटेरियल आर कॉल्ड सेडिमेंट. दिस फाइन सॉइल विच फ्लो विद द वाटर, इट इज कॉल्ड सेडिमेंट. और ये भी क्या होता है, इसको जमा कर देता है, इसको इकट्ठा कर देता है रिवर बैंक पे. एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल प्लेन. और इस तरह से क्या होता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन होता है या फॉर्म होता है. एंड द रिवाइज बैंक आर कॉल्ड लीवीज. द रिवाइज बैंक आर कॉल्ड लीवीज. सपोज ये नदी है हमारी, रिवर है, तो ये क्या है, रिवर बैंक है. ये क्या है, रिवर बैंक है. लेकिन जब फ्लड आ गया तो पानी का फ्लड यहाँ तक आ गया. पानी का फ्लड जो है यहाँ तक आ गया, तो पानी यहाँ तक आ गया. तो अब ये पानी यहाँ रिवर बैंक, अब ये नया हो गया, ये टेम्परेरी रिवर बैंक हो गया. तो हम इसको क्या कहते हैं, टेम्परेरी रिवर बैंक. जो पानी फ्लड होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, हम उसको क्या कहते हैं, लीवीज कहते हैं. एज द रिवर अप्रोच द सी. और जब रिवर बहते बहते समुद्र के पास पहुंचती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है. इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है कई छोटे छोटे रिवर में. हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. वी कैन सी एग्जाम्पल हियर. सपोज ये रिवर यहाँ से आना शुरू हुई, यहाँ तक आई, तो यहाँ तक तो ये रिवर ठीक है, पानी ज्यादा है यहाँ पे. अब यहाँ से इधर थोड़ा पार्ट चला गया, रिवर का पानी थोड़ा इधर चला गया, रिवर का इधर हो गया, इधर हो गया. सो दिस इज द मेन रिवर. और यहाँ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई रिवर, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी. इन छोटे पार्ट को जो रिवर के हैं इनको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी. और ये मेन पार्ट, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी मेन रिवर. और दीज आर डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी बना हुआ है, फॉर्म हुआ है डिस्ट्रीब्यूट से, डिवाइड करना. सो द रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर ना, सो इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी. सो तो जब ऐसे होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है छोटे छोटे पार्ट में, और ये ईच डिस्ट्रीब्यूटरी, सारे डिस्ट्रीब्यूटरी अपने साथ जो सॉइल रखते हैं, सैंड रखते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं अपने किनारे किनारे. जैसे ये मेन रिवर है, मेन रिवर यहाँ से बह के इधर आई, यहाँ पे बह गई, ये इधर हो गया, ये डिवाइड हो गया ना मेनी पार्ट में. सो दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड दिस इज द मेन रिवर. सो इट इज मेन रिवर आर इट इज ट्रिब्यूटरी. सो सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, अपने सराउंडिंग एरिया में अपने साथ जो सॉइल बहा के लेके जाती हैं, वो उसको डिपॉजिट कर देती हैं. जैसे द सॉइल एंड सैंड विच फ्लो विद दिस रिवर, इट इज डिपॉजिटेड हियर एंड हियर. And the soil and sand which flow through this water, it deposited here. Which flow through this water with this water had deposited here. So this portion of the soil or silt or sand which is deposited near the distributaries of the river, near the river, it is called delta. It is called delta. It happens only when the river go close to the ocean. Example is Sundarban Delta. Our next heading is work of sea waves. Sea waves. In the sea waves are there. These waves form the different type of landform. We will see here one by one. The erosion and deposition of the sea waves. When sea waves go from here to there, they also carried with them different type of
deposition, different type of material like silt, soil, etc. And it deposit at one place. In this way, it give rise to coastal landform from the landform. Sea wave continuously strike at the rocks. Sea waves continuously hit the rocks and crack develop. There crack develop. Suppose these are sea, these are sea, these are water. So water waves continuously hit this rock and there become a hole. So it is called sea caps. It is called sea caps. और इसी सी केप्स को वाटर कॉन्टिन्यूसली 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर ऐसे ही वेव्स जो हैं इसको क्रैश करती रहती हैं, स्ट्राइक करती रहती हैं, टकराती रहती हैं. तो इस तरह से क्या होता है, इसमें होल हो जाता है. ये पूरा इस पार से उस पार होल हो जाता है. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ इस पार से उस पार होल हो गया. तो हम इसको क्या कहते हैं, सी आर्च. क्या कहते हैं इसको, सी आर्च. पहले ये स्मॉल होल था, होते होते पूरा ये होल इस पार से उस पार हो गया. वाटर फ्लो कर सकता है इस साइड से उस साइड. इसको हम क्या कहते हैं, सी आर्च. ऐसे होते होते क्या होगा, ये पानी ऐसे होते होते क्या होगा, ये पूरा पोर्शन कट के अलग हो जाएगा और ये अपने मेन बड़ी चट्टान से अलग हो जाता है, मेन रॉक से अलग हो जाता है, एकदम सेपरेट हो जाता है. इसको हम कहते हैं सी स्टैक्स. क्या कहते हैं हम, सी स्टैक्स. और नेक्स्ट इज सी क्लिफ. व्हाट इज सी क्लिफ? स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली. ऐसा एरिया जहां पे ओशन खत्म हो जाती है, जहां पे सीज खत्म हो जाती है और वहां पे किनारे चट्टान होती है, उसको हम कहते हैं क्लिफ. जैसे हम यहां देख सकते हैं, जैसे ये है ओशन, ये है सीज के ऊपर ये है चट्टान. तो ये वर्टिकली चट्टान है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सी क्लिप्स. क्या कहेंगे हम, सी क्लिप्स. समुद्र के जस्ट कोस्टल एरिया पे जहां पे चट्टान पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सी क्लिप्स. एंड नाउ द सी वेव्स डिपॉजिट समटाइम अलोंग द शोर. सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट on its corner and it form the beaches. And next heading is work of ice. What is work of ice? Glacier or river of ice. Glacier or river of ice which erode the land part, which cut the land part and damage the soil and stone to expose the soil, and it cut in a long period of time. This glacier cut the land, cut the soil, cut the landform and cut the rocks, and there become a hole. देयर बिकम अ हैलो होल. उसके अंदर स्पेस हो जाता है, चट्टान के अंदर स्पेस हो जाता है. एंड व्हेन आइस स्मेल्ट, और जब एंड व्हेन द आइस स्मेल्ट दे गेट फिल्ड विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक. जब ग्लेशियर बहता है, जब ग्लेशियर बहत के ऐसे ऐसे चलता है, तो चलते चलते ऐसे ही ये जो ग्लेशियर है यहाँ पे थोड़ा चट्टान को काट देता है. चट्टान जब कट के, इतना चट्टान कट गई तो अब यहाँ पे होल हो जाता है. तो जब पानी ये जो आइस है पिघलता है तो उसमें भर जाता है जाके उस होल में, उस हॉलो में. तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं लेक्स. हम इसको क्या कहते हैं, इट फॉर्म अ ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन. एंड मटेरियल बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट, जो डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स. मटेरियल जो ग्लेशियर के साथ बहते हैं, ये ग्लेशियर है, इसके साथ जो पानी के साथ, बर्फ के साथ जो चीज़ें बहती हैं वो एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाती हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क ऑफ विंड. वर्क ऑफ विंड. तो wind also play very major role, especially in the desert area, to change the landform, to change the form which are found on the land. So number one is mushroom rock. Mushroom rock. How mushroom rock are found? Mushroom rock means like this. Rocks are like this. This type of rock are called mushroom rock. So what happens when the wind blow in the desert area,
sand part blow with the wind. So they cut. तो जब हवाएं तेज चलती हैं तो नीचे का पोर्शन जो होता है रॉक्स का, वो लगातार कॉन्टिन्यूसली बार बार सैंड के टकराने से करते करते नैरो हो जाता है और ऊपर का एरिया ऐसे ही रह जाता है. तो इस टाइप की जो रॉक होती है हम इसको क्या कहते हैं? मशरूम रॉक. इसको क्या कहते हैं? मशरूम रॉक. और ये होता क्यों है? हवाओं के चलने से. इट इज ड्यू टू ब्लोइंग अप द विंड एंड स्ट्राइकिंग विद द स्टोन, स्ट्राइकिंग बाय द सैंड विद टू द रॉक इन टू द स्टोन. एंड सेकेंड इज सैंड ड्यून. जब हवाएं चलती हैं तो सैंड पार्ट को, बहुत सारी सैंड को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं. एंड दिस ऑल सैंड गैदर्ड टुगेदर, दिस ऑल सैंड deposited at one place and it form like a hill, it make a like a hill, it become so high like a hill like this. यहाँ की जो हवाएं, यहाँ के जो सैंड थी हवा की वजह से इधर आ गई, ऊपर हो गई, यहाँ तक आके जमा हो गई, यहाँ आके जमा हो गई, तो ये एरिया थोड़ा सा ऊंचा हो गया. so these all called sand dunes. And when such sand is deposited in large area, it is called leases, it is called loess. Large deposit of loess found in China, and especially loess are found in China. By this we came to end of this chapter. Thank you.